Hi, it's Jasmine. Can I ask you a huge favor? Go right ahead. I'm flying into Chicago this Saturday. Is there any chance I could stay over at your place? Of course, you can crash with me. I have a roommate, so bedroom is occupied, but I can put you up on couch if you don't mind. No, not at all. Are your kids coming? No, their grandparents will be looking after them, so it's just me. And I will be getting in around 2 a.m. in the morning, but if you don't want to stay up, you can just keep the keys under the doormat. Okay, see you in few days. जब जास्मिन ने मनजीत से ये पूछा कि कैन आई आस्क यू ह्यूज फेवर, सो मन ने बहुत ही ब्यूटीफुली उसको रिप्लाई किया इट यस गो राइट अहेड। गो राइट अहेड हम यूज करते हैं जब हम किसी तरीके की परमिशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि कैन आई यूज योर बाथरूम, कैन आई ओपन दिस विंडो, और अगर हमें सामने से जवाब मिलता है यस गो अहेड, दैट मीन्स यस यू कैन, यू हैव द परमिशन। उसके बाद में जास्मिन पूछती है उनसे कि कैन आई स्टे ओवर एट योर हाउस। नाउ स्टे ओवर एंड स्लीप ओवर ये फ्रेजेस हम यूज करते हैं जब हम किसी से पूछ रहे होते हैं या परमिशन काइंड ऑफ मांग रहे होते हैं कि क्या मैं तुम्हारे घर एक रात के लिए रह सकती हूँ। दैट इज स्टे ओवर और स्लीप ओवर। यहाँ पे जास्मिन रिक्वेस्ट कर रही है, फेवर मांग रही है मन से कि क्या मैं तुम्हारे यहाँ पे एक रात के लिए रुक सकती हूँ। एंड उस पे मन किस तरह से रिप्लाई करती है। मन बोल रहे हैं कि येस ऑफ कोर्स यू कैन क्रैश विद मी। क्रैश विद मी ना इसका मतलब ये नहीं होता कि प्लेन्स क्रैश हो रहे हैं यहाँ पे। यू कैन क्रैश विद मी एक बहुत ही इनफॉर्मल सा वे है बोलने के लिए। येस ऑफ कोर्स यू कैन, उसको हम बोलते हैं येस यू कैन क्रैश विद मी। एंड देन आफ्टर दैट वो बोलती हैं कि आई कैन पुट यू अप ऑन सोफा। Put you up on sofa is more about, or I can put you up on the couch. That means she is saying कि मैं आपको couch एक दे सकती हूँ सोने के लिए. I can put you up on the couch. Jasmine is coming all alone at Man's place. Why? Because someone else is taking care of her kids or someone else is looking after her kids. Jasmine मन के घर पे अकेली आ रही है क्योंकि उनके बच्चों का ध्यान कोई और रखने वाला है। Someone else is taking care of her kids or looking after her kids. Looking after का मतलब होता है जब कोई किसी चीज़ का या किसी इंसान का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखता है पूरी जिम्मेदारी के साथ। चलिए स्टोरी को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी क्या होता है, जास्मिन उनको सजेस्ट करती है दैट आप सिंपली अपनी जो घर की चाबी है उसको यू कैन कीप इट अंडर द डोरमेट। आप डोरमेट के अंदर रख दीजिएगा इन केस इफ यू डोंट वांट टू स्टे अप सो लेट। स्टे अप सो लेट का मतलब क्या होता है? स्टे अप सो लेट का मतलब ये होता है जब आप ज़्यादा देर जागना नहीं चाहते। यहाँ पे जास्मिन मन को ये सजेस्ट कर रही है इफ़ यू डोंट वांट टू स्टे अप सो लेट, अगर आप ज़्यादा देर तक जागना नहीं चाहते तो प्लीज़ जो घर की कीज़ हैं वो डोरमेट के अंदर आप रख दीजिएगा। Hey, good morning. How was your trip? My trip was pretty exhausting. It sure felt good to sleep in for some time, but my flight got delayed. I reached here by 4 a.m. But you left the wrong keys outside and I was locked out. Oh my gosh, I'm so sorry. How did you get in then? I knocked on the door until your roommate got up and let me in. Thank God she woke up. I didn't hear you knocking at all. Actually, I was watching TV upstairs and I must have dozed off. So how long have you had a roommate? Oh, she moved in last month, but I love her company, but she's little bit messy. She never put things away in the kitchen and she always tosses her jacket on the couch instead of hanging it up. Okay, my son's the same way. I finally laid down the law and I told him very clearly I was going to start throwing out his stuff if he is not able to take care of the things. Oh, really? Hey, what's that burning smell? Oh, I was heating up some milk for the coffee. It must have boiled over. Give me a second, I'll check and come. Need any help? Yeah, can you come and chop up these vegetables to make an omelette? Sure, coming. उसके बाद जब जास्मिन पहुंचती है मन से मिलने के लिए और जब मन उनको पूछती है कि हाउ वाज योर जर्नी, कैसा रहा सब, तो शी सेज कि इट वाज प्रीटी एग्जॉस्टिंग। बट क्या चीज़ हो जाती है यहाँ पे जो एक्सपीरियंस जास्मिन को हुआ है वो अब शेयर करती है वो मन के साथ कि तुमने गलत चाबियां रख दी थी डोरमेट के नीचे। यू हैव पुट इन द रॉन्ग कीज अंडर द डोरमेट एंड आई वाज लिटरली बैंगिंग द डोर। मैं डोर को कंटिन्यूसली नॉक कर रही थी एंड आई वाज लॉक्ड आउट। लॉक्ड आउट का मतलब ये होता है जब हम किसी बिल्डिंग में, किसी घर में, किसी
कार में या फिर कोई भी जगह पे जब हम बाहर से स्टक हैं, हम अंदर नहीं जा पा रहे, दैट इज लॉक्ड आउट। तो यहाँ पे जैस्मिन गलत चाबी की वजह से लॉक्ड आउट हो जाती है मन के घर के बाहर, और वो चीज वो उनको बता रही है दैट आई वाज लॉक्ड आउट एंड आई वाज बैंगिंग ऑन द डोर। बट देन मन उनको पूछती है फिर क्या हुआ, एंड देन शी सेज कि तुम्हारी जो रूममेट है शी केम, शी वोक अप। वोक अप का मतलब होता है, काफी लोग जानते भी होंगे कि नींद में से उठ जाना। सो योर रूममेट वोक अप व्हेन शी हर्ड मी नॉकिंग द डोर। जब उन्होंने आवाज सुनी दरवाजा खटखटाने की, उस टाइम पे शी वोक अप, शी गॉट अप एंड लेट मी इन। वो उठ गए, वो बेड से उठे और शी लेट मी इन। लेट मी इन का मतलब होता है जब हम किसी को परमिशन देते हैं अंदर आने के लिए, दैट इज लेट इन। और उसके बाद मन बहुत ही ज्यादा सॉरी फील करती है। वो बोल रही है कि आई एम सो सॉरी, आई वॉज डोज्ड ऑफ। टीवी देखते देखते मैं डोज ऑफ हो गई थी। डोज ऑफ का मतलब होता है हमें नींद आ जाना। डोज ऑफ एंड नोड ऑफ मोर और लेस काफी हद तक सिमिलर होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। सो डोज ऑफ इज लाइक, यहाँ पे जो मन ने कहा कि आई वॉज डोज्ड ऑफ व्हाइल वॉचिंग टीवी, मतलब टीवी देखते देखते मुझे नींद आ गई। So that is dozed off। अच्छा, अब यहाँ पे जैस्मिन और मन की थोड़ी सी गॉसिपिंग हो रही होती है। अब लड़कियां तो गॉसिपिंग तो करेंगी, तो उन दोनों की गॉसिपिंग हो रही होती है मन के रूममेट के बारे में। अब मन की रूममेट कैसी है, बहुत ही ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है अनफॉर्चुनेटली। तो जो मन है वो अपनी फीलिंग्स उसको बता रही है कि किस तरह से वो बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड अपनी रूममेट से परेशान है। डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, जब लोग प्रॉपरली चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करके रखते हैं, या फिर यहाँ पे जो पर्टिकुलर फ्रेज मन ने यूज किया है, शी नेवर पुट्स थिंग्स अवे, मतलब जो भी चीज जहां से उठाई उसको वहीं पे रख दिया, उसको सही जगह पे वापस नहीं रखा, उसको ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा। तो शी नेवर पुट्स थिंग्स अवे, मतलब वो अपनी चीजें कभी भी अच्छे से नहीं रखती है, नॉट इवन दैट मच। ऑल्सो शी टॉसेज हर टावल हेयर एंड देयर। शी टॉसेज हर टाल हेयर एंड देयर का मतलब होता है कि वो अपना टाल जहां मर्जी पड़े वहां फेंक देती हैं। यहाँ पे यूज किया है शी टॉसेज हर टाल मोस्टली ऑन द काउच, दैट मीन्स वो काउच पे मोस्टली अपना टाल फेंक देती हैं। इवन हर जैकेट इज लाइंग अप हेयर एंड देयर, कभी उसको शी इज नॉट इवन हैंगिंग इट अप। हैंगिंग इट अप मतलब वो अपना जैकेट कभी भी प्रॉपर हैंग करके भी नहीं रखती हैं। तो ये सब सुन के जैस्मिन कहती है कि मेरा बेटा भी मोर और लेस ऐसा ही था, कि माई सन वॉज ऑल्सो वेरी मच सिमिलर टू दिस, एंड वो कभी भी अपना स्टफ अच्छे से, अपनी चीजें अच्छे से नहीं रखता था। सो मैंने क्या किया, मैंने उसको एक वार्निंग दी। आई गेव हिम अ वार्निंग दैट आई विल थ्रो आउट ऑल ऑफ योर स्टफ इफ यू डोंट कीप इट वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो थ्रो आउट का मतलब ये होता है कि सारी की सारी चीजों को निकाल के बाहर करना। उन्होंने अपने बेटे को ये प्यारी सी प्यार से धमकी दे दी, दैट शी गेव हिम अ वार्निंग दैट आई एम गोइंग टू थ्रो आउट ऑल ऑफ योर थिंग्स आउट इफ यू आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग देम प्रॉपरली। अब ये सब गॉसिपिंग में, बातों में कुछ कुछ सी बर्निंग सी स्मेल आती है जैस्मिन को, और वो बोलती है व्हाट इज दिस बर्न स्मेल, ये जलने जैसी स्मेल कहाँ से आती है। देन ऑल ऑफ अ सडन मन को रियलाइज होता है, ओ माई गॉड, मैंने तो दूध गर्म करने के लिए रखा था। आई वॉज पुटिंग ऑन, लाइक आई वॉज हीटिंग अप द मिल्क। हीटिंग अप, हीटिंग अप का मतलब होता है जब हम गैस पे या स्टोव पे कोई चीज रखते हैं गर्म करने के लिए। हीट अप की जगह पे आप वार्म अप भी यूज कर सकते हैं, कि जब हम कोई पर्टिकुलर चीज खाने की, किसी चीज को, फूड को हम वार्म अप कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं, उस टाइम पे हम उसको वार्म बोलते हैं। बट होता क्या है, मिल्क इज बॉइलिंग डाउन और मिल्क इज बॉइल्ड ओवर। नाउ मिल्क इज बॉइल्ड ओवर। अब इन दोनों की बातों में जो मन का दूध था वो तो गिर गया, so it is like spilled. So milk is boiled over means when it is overflowing the pot and it is spilled all over. मतलब वो पतीले में से दूध पूरा गर्म होके, देखा होगा आप लोगों ने काफी बार घर पे, दूध निकल के पूरा का पूरा नीचे स्पिल हो गया। So the milk is boiled over. एंड देन जैस्मिन पूछती है कि आपको कुछ हेल्प चाहिए, मैं कुछ हेल्प कर दूं। तो बोलती है कि मैं क्लीन जब तक कर रही हूँ दूध को, प्लीज थोड़े से वेजिटेबल्स कट कर दो। एंड डेफिनेटली चॉप अप, आपको पता ही है कि इसका मतलब क्या होता है, कट करना। सो बोलती है कि तुम जब तक वेजिटेबल्स को कट कर दो, जब तक मैं ये मेस को क्लीन कर देती हूँ।
कितने सारे एक्सप्रेशंस आज हमने सीखे हैं, स्टोरी फॉर्म्स में पता भी चला आपने मोर देन 15 एक्सप्रेशंस आज सीखे हैं। ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, लिंक में ज़रूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा, लिंक को फॉलो कीजिए, उस पर सिर्फ एक क्लिक करना है और वहाँ पे बहुत सारे वर्कशीट्स, पूरे के पूरे डायलॉग्स वहाँ पे हैं आपके रेफरेंस के लिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट फ्रेज कौन सा है और आप उसको कहाँ यूज़ करेंगे। तो टिल देन मैं वापस आऊँगी नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन के साथ, एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।